عوام بیسیکلی وہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہے جو کہ میڈیا ان کو دکھا رہا ہوتا ہے. میڈیا ان کو اگر یہ خبر دے گا کہ افراتفری ہے, ملک میں انارکی ہے, پریشانی ہے, ذہنی طور پہ سٹریس ضرور ہوگا. پاکستان کا ترقی اور عروج کا دور شروع ہوا ہے اور یہ 19 سالہ ترقی کا دور ہے. چیزیں ہوا میں نہیں چل رہی ہوتی, چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز پہ اور حقیقت پسندی کی طرف آنا شروع ہوتی ہے. معاشی طور پہ بحالی ترقی نظر آئے گی. پاکستان میں آپ کو پولیٹیکلی طور کے اوپر میچور فیسز نظر آنا شروع ہوں گے. یہ جو ابھی کی قیادت چل رہی ہے, یہ اس 19 سالہ دور میں یہ قیادت آپ کو اکثر تبدیل نظر آئے گی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے اختتام پہ پاکستان کی کوئی اور شکل ہوگی. پاکستان کے فلیگ میں جو آپ کو چاند نظر آتا ہے, پاکستان کے ذائچے میں وہ زوالی چاند ہے. اگر ہم لوگ پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو 2025 2026 یہ پاکستان کے اکانومی وائز ایک بہتر ٹائم ہوں گے. السلام علیکم. ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زوہا راشد. بجٹ آنے سے پہلے تک حکمرانوں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو مل رہی تھی کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت بہتر ہیں, پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی بجٹ آیا, بجٹ پنجاب اور وفاق میں پیش ہوا, اس کے بعد سے پاکستان کی معاشی صورتحال بدتر ہو چکی ہے. غریب عوام پر مزید ٹیکس لگا دیے گئے ہیں, پیٹرول مزید مہنگا کر دیا گیا ہے. آخر پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں, پاکستان کب ترقی کرے گا اور کب معاشی حالات سٹیبل ہوں گے, یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ معروف ایسٹرولوجر مصور زنجانی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے معاشی حالات کو کدھر دیکھ رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں یہ؟ دیکھیں, اس میں اگر ہم لوگ پاکستان کے ذائچے کو دیکھتے ہیں نا, عوام بیسیکلی وہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہے جو کہ میڈیا ان کو دکھا رہا ہوتا ہے, اور اسی کے اعتبار سے ان کا مائنڈ میک اپ ہو رہا ہوتا ہے, اسی کے اعتبار سے ان کے موڈ سوئنگز بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا ان کو سب اچھے کی خبر دے گا تو سب اچھا ہوگا. میڈیا ان کو اگر یہ خبر دے گا کہ افراتفری ہے, ملک میں انارکی ہے, پریشانی ہے, تو ہر شخص کسی نہ کسی طور پہ شعوری یا لا شعوری طور کے اوپر ذہنی طور پہ سٹریس ضرور ہوگا. لیکن ہم چونکہ علمی بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے چارٹ کے مطابق. پاکستان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو پاکستان کے اس وقت اسٹرالوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ دو ذائچے جو ہیں, دو چارٹ جو ہیں, ان کو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتا ہے. ایک پاکستان کا چارٹ ہے جب پاکستان مارز وجود میں آتا ہے 1947 کا. پھر اس کے بعد پاکستان کا دوسرا چارٹ ہوتا ہے جب پاکستان کی جغرافیائی صورتحال چینج ہوئی تھی 1971 میں. تو ان دونوں چارٹس کے مطابق اگر ہم لوگ پلانٹری اسپیکٹس کو دیکھیں تو یہ چیز ہماری جو ہر سال بک آتی ہے زنجانی جنتری, اس میں بھی یہ چیز ان ریٹن فارم میں موجود ہے کہ پاکستان کا ترقی اور عروج کا دور شروع ہوا ہے اور یہ 19 سالہ ترقی کا دور ہے. 19 ایئرس کا ہے. پاکستان کے ذائچے میں جو مہادشا چل رہی ہے یہ سیٹرن کی مہادشا ہے. سیٹرن کی مہادشا کسی کے بھی ذائچے میں جب آئے, بالخصوص کیونکہ پاکستان کے ذائچے میں ہے, تو سیٹرن کا تعلق ہوتا ہے ریالٹی کی طرف چیزیں لے کے آتا ہے. چیزیں ہوا میں نہیں چل رہی ہوتی, چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز پہ اور حقیقت پسندی کی طرف آنا شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر یہ 19 سالہ دور دیکھا جائے تو یہ 2024 میں شروع ہوا ہے, یہ رہے گا 2042 تک, 2043 تک. یہ 19 سال ایک دور ہوگا پاکستان کی زندگی میں جو کہ ایک ترقی کا دور ہے. لیکن یہ ترقی اوور دا نائٹ نہیں ملے گی, کیونکہ پچھلے آپ کو 70-75 سال کا 78 سالوں کا جو معاملہ ہے اس کو آپ اوور دی نائٹ چینج نہیں کر سکتے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ان 19 سالوں کے دور میں آپ کو پاکستان میں گریجولی طور کے اوپر معاشی طور پہ بحالی ترقی نظر آئے گی. پاکستان میں آپ کو پولیٹیکلی طور کے اوپر میچور فیسز نظر آنا شروع ہوں گے. یہ جو ابھی کی قیادت چل رہی ہے یہ اس 19 سالہ دور میں یہ قیادت آپ کو اکثر تبدیل نظر آئے گی. یہ تمام ایسی قیادت جو کہ کسی بھی طور پہ صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہوتی ہے, یہ قیادت آپ کو تبدیل نظر آئے گی. اور انشاءاللہ ہم اب جب 10 سال بعد یا 12 سال کے بعد جب بات کر رہے ہوں گے تو تب عوام کو یہ چیز بخوبی طور کے اوپر سمجھ آئے گی کہ اس ٹائم کی جو قیادت ہے وہ نسبتاً اس قیادت کی نسبت بہت میچور ہے, پریکٹیکل ہے, اور پاکستان کی فلاحی طور پہ چیزوں کو زیادہ اچھے طور پہ لے کے چل رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان کے ذائچے میں دیکھو تو ایک بہت اچھا ٹرننگ پوائنٹ پاکستان کے چارٹ میں بھی ریسنٹلی ایڈ ہوا ہے, جس کے بارے میں لاسٹ بھی کچھ میں نے اپنے پروگرامز میں بات کی تھی کہ جوپیٹر جو کہ کشادگی کے رسک کو ریلیٹ کرتا ہے, پراسپیرٹی کو ریلیٹ کرتا ہے, پاکستان کے ذائچے کے معیشت کے گھر میں انٹر ہوا ہے. اور یہ اس کی جو پوزیشن ہے یہاں پہ پورا 1 سال رہنی ہے 2025 میں. اس کے بعد اس نے موو آن کر جانا ہے پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز کے ہاؤس میں. نیبرنگ کنٹریز کے ہاؤس میں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہوگا اس سال کے اختتام میں, اکتوبر نومبر میں. پھر اس کے بعد اگلا پورا سال. تو وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے بارڈر کرائسس, بارڈر اسٹریس, بارڈر پرابلمس, ایک تو یہ انشاءاللہ اسی سال نسبتاً ریزالو ہونا شروع ہوگا. اچھا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے اختتام پہ پاکستان کی کوئی اور شکل ہوگی؟
पाकिस्तान की माशी तौर के ऊपर कुछ बेहतर शक्ल होगी ठीक है। कि पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज माशी तौर के ऊपर एक बेहतर प्लानिटरी पोजीशन में होगा। मतलब ये पोजीशन नहीं है कि पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता कि कोई जोग्राफियाई पोजीशन तब्दील हो जाए, या मतलब खुदा ना मुआशी। खास्ता मतलब पाकिस्तान का जो है वो झंडा चेंज हो जाए, जो कि पाकिस्तान के दायचे में वैसे भी इसके ऊपर भी एक अलग डिबेट है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि पाकिस्तान का अगर आप फ्लैग देखें ना, तो पाकिस्तान के फ्लैग में जो आपको चांद नजर आता है, वो चांद आपको जो है वो अरूज का चांद नहीं है। पाकिस्तान के चांद में जो बेसिकली मून साइन है पाकिस्तान के जायचे में, वो जवाली चांद है। तो जवाल का चांद है, तो जवाल के चांद में आपको पता है कि प्रॉस्पेरिटी, फलना फूलना जो है वो थोड़ा कम होता है। तो वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान की माशियत को देखें तो 2025 2026 ये पाकिस्तान के इकोनॉमी वाइज एक बेहतर टाइम होंगे। सर इसमें No doubt। इसमें कोई नुकसान वगैरह भी देख रहे हैं? नुकसान इन किस सेंस? माशी तौर पे मुआशी तौर पे पाकिस्तान के जायचों में देखें तो माशियत के एतबार से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बेहतरी वाला फेज है, नुकसान वाले मामला नहीं है। ठीक है। नुकसानात तब होते हैं जब खुदा ना खास्ता कोई बड़े बड़े क्राइसिस आ रहे हों, या खुदा ना खास्ता जो है कुदरती आफात आ रही हो। तो इस एतबार से पाकिस्तान की मैशत के एतबार से चीज़ें प्रॉस्पेरिटी की तरफ है, बहाली की तरफ है, बेहतरी की तरफ है। और सिर्फ हम इस बजट को देख के पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नहीं देख सकते, क्योंकि बजट के बाद मिनी बजट भी आ जाता है। बजट में जो प्राइसेस बढ़ गई हैं वो प्राइसेस रिवर्स भी हो सकती हैं। बजट में जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं वो टैक्सेस जो है वो चेंज भी हो सकते हैं। बजट के बाद जो एकदम से पेट्रोल अराइज हुआ है, नो डाउट पाकिस्तान से पेट्रोल नहीं निकलता ना, पेट्रोल निकलता है हमारे हमसाया मुल्क ईरान से, पेट्रोल निकलता है अरबिक कंट्रीज से, जहाँ पे इस वक्त आपकी वहाँ से ट्रेड नहीं हो पाएगी। यहाँ से आप इस वक्त जो है चाहे सी के रूट से आए चाहे ज़मीन के रूट से आए, आप पेट्रोल जो है वो नहीं मंगवा पाएंगे। तो इस वजह से पेट्रोल प्राइसेस जो हैं पूरी दुनिया में अराइज हुई हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। तो हम सिर्फ दो चीज़ों को लेकर पाकिस्तान की पूरे अगले आने वाले मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जब प्रेडिक्ट करेंगे तो 2024 के बाद से, जब मैंने बताया है कि अरूज का दौर शुरू हुआ, 2025 में आप देखें कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इब्तिदा में जनवरी के महीने में ही मेरे ख्याल से शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी। शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को यहाँ पे जब इस्लामाबाद में हुई है तो एक ग्लोबली तौर के ऊपर एकदम से इज्जत मिलना शुरू हुई। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान में अभी ये रिसेंटली मई के महीने में जो इंडिया पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें ग्लोबली तौर के ऊपर पाकिस्तान को एकदम से इज्जत मिल गई है। पाकिस्तान की जो मोरल बिल्कुल डिग्रेड हो चुका था, पाकिस्तान की आवाम जो है वो बिल्कुल एक मायूसी में ज़िंदगी गुजार रही थी कि शायद पूरी दुनिया में उनकी किसी भी तौर के ऊपर कोई पहचान नहीं है। तो अल्लाह ताला ने एक आपको इज्जत दी, मुकाम दिया, और यही बुलंदी सरफराजी आपको अगले आने वाले सालों में भी नजर आएगी और इससे ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर नजर आएगी। सर मुझे ये बताएं कि अब गरीब आवाम जो है वो रिकॉर्ड की गई कि पाकिस्तान में गरीब की जो शरह है वो 45% हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ेगी या आप इसको कम होता देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में एक होती है इंटरनेशनल तौर के ऊपर आप पॉवर्टी लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं कि पॉवर्टी लाइन जो है इंटरनेशनल तौर के ऊपर क्या है, और फिर एक पॉवर्टी लाइन होती है जो कि पाकिस्तान के लेवल के ऊपर है। तो पॉवर्टी लाइन पे देखा जाए तो गुर्बत का जो मेयार है ना, गुर्बत में वो मामला होते हैं कि जो लोग किसी भी तौर के ऊपर अर्निंग नहीं कर रहे होते, या वो लोग होते हैं कि जो अपने यूटिलिटी बिल्स और हैंड टू माउथ वाली जो नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहे होते। तो बेसिकली ये मामला जो गुर्बत का बढ़ने वाला मामला है, इसका कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान की मईशत से कोई लेना देना नहीं है। गुर्बत बनने वाला जो मामला है वो एक अलग लेवल है, वो आपकी हुकूमत की पॉलिसी से होता है। वो आपकी हुकूमत की उन पॉलिसी से होता है कि जब आप पाकिस्तान में एक ऐसे तबके को जो कि मुतवस्सित हो, जो कि गरीब हो, जिसके पास हुनर हो लेकिन उसके बाद तलीम ना हो, आप उस हुनरमंद आदमी को जब काम करने के लिए वसाइल नहीं प्रोवाइड करेंगे, उस हुनरमंद आदमी को काम करने के लिए फैक्ट्रीज जनरेट नहीं करवाएंगे, तो ये चीज़ें तब शुरू होती हैं। तो हुकूमती लेवल के ऊपर जब आप अपने ख़जाने को बेनज़ीर इनकम फंड से हो, चाहे वो इंसाफ फंड से हो, चाहे वो नून लीग फंड से हो, जब आप अवाम को इस तरफ लगा देंगे कि आपको फ्री में पैसा मिल रहा है और आप सारा दिन लाइनों में जाके जलील हों और उसके बाद वो पैसा हासिल करें और मेहनत की तरफ आप नहीं लेके जाएंगे, तो फिर आपकी ऑब्वियसली पॉवर्टी जो रेशो है वो बढ़ना शुरू होगी। तो ये पॉलिसीज पाकिस्तान की एडजस्ट होती हैं मुल्क की क़यादत पे। तो मुल्क की क़यादत जो है ये उनकी पॉलिसीज के ऊपर है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में रहने वालों की बात करेंगे, साल 2026 में आप इस रेशो को कम देखेंगे, साल 2027 में आप इस रेशो को मजीद और ज्यादा कम देखेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के जायचे में अवाम के घर में जो है साल 2026 में जुपिटर ने बहुत अच्छी प्लेसमेंट में आना है। साल 2026 का इख्तिताम और साल 2027 यानी कि 2026 का एंड और 2027 ये पाकिस्तान के जायचे में बहुत अच्छे साल हैं कि जिसमें पाकिस्तान में बिजनेस आना शुरू होगा,
पाकिस्तान में कुछ नई इंडस्ट्रीज आना शुरू होंगी, पाकिस्तान में कुछ नई फैक्ट्रीज लगना शुरू होंगी कि जिससे वो लोग जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं उनको कुछ हुनरमंद लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। तो ये फौरी चीजें ओवर द नाइट रिपीट नहीं होंगी, लेकिन इंशाल्लाह अगले आने वाले 2 से 3 सालों में आप देखेंगी कि चीजें अवाम की सतह के ऊपर भी और मुल्क की सतह के ऊपर भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान के ताल्लुकात हमसाये ममालिक के साथ कैसे देख रहे हैं? देखिए हमसाया ममालिक के साथ, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था कि जुपिटर जो है पाकिस्तान के ज़ायचा के बिल्कुल एंड के ऊपर अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी देख लें तो उसमें पाकिस्तान के ज़ायचे के हमसाया नेबरिंग कंट्रीज के हाउस में आएगा, जो कि उसकी वहाँ पे बड़ी एग्जॉल्टेड पोजीशन है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो पाकिस्तान के फिल वक्त जो एक थोड़ा सा स्ट्रेस कायम हुआ है सिर्फ एक ही हमसाया मुल्क के साथ, और दूसरे हमसाया मुल्क के साथ थोड़ी सी मोहरी चल रही है। बाकी 2 तरफ के आपके जो बॉर्डर्स हैं वो तो आपके लिए रिलैक्स्ड हैं। तो ऑब्वियसली आपकी जो हमसाया ममालिक के साथ जो चीज़ें हैं वो मजीद और ज़्यादा सेटल डाउन होना शुरू होंगी, और ये महीने होंगे अक्टूबर नवंबर के महीने। फिर उसके बाद साल 2026 में ये फेज़ पाकिस्तान के ज़ायचे में शुरू होगा, मार्च ऑनवर्ड्स, जब जुपिटर पाकिस्तान के 3rd हाउस में नेबरिंग कंट्रीज के हाउस में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आएगा। वहाँ पे ये पाकिस्तान को इज्जत भी दिलाएगा, बुलंदी भी दिलाएगा, सरफराजी भी दिलाएगा, और आपकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ किसी न किसी तौर पर आपकी ट्रेड को भी मजीद और ज़्यादा एक्टिविटियाँ बहाल करेगा। क्योंकि अभी वक्ती तौर के ऊपर जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपकी बार्टर ट्रेड डिस्टर्ब हुई है, कि आपकी ईरान बॉर्डर्स क्लोज होने की वजह से जो बार्टर ट्रेड रुकी है, वो बार्टर ट्रेड भी आपको इंशाल्लाह अगस्त के महीने के बाद से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जी नाजरीन, ये थी मुसव्वर ज़ंजानी साहब की राय। ये कोई काला जादू नहीं करते, इनके पास कोई काला जादू का इल्म नहीं है, ना ये गैब जानते हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस के जरिए, अपनी एस्ट्रोलॉजी के जरिए ये बताया है कि ये पाकिस्तान को आने वाले वक्त में कैसे देख रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि असल हकीकत क्या है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।